Good morning, students. We are dealing with our credit known as principles and methods of enzyme purification. Now, as I told in earlier video, we have discussed about the cell fractionation, isn't it? What is the cell fractionation? जहाँ पर हमने दो टाइप्स देखे about or we can say two processes we have studied: differential centrifugation and density centrifugation. We can say density gradient centrifugation. तो डिफरेंशियल उसको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी डिफरेंशिएट वन थिंग फ्रॉम द अनदर थिंग, और वी डिफरेंशिएट वन थिंग ऑफ सेल फ्रॉम द अनदर सेल. So it is known as the differential. Here we don't get the complete what we want. Okay, so उसके लिए हम second process use करते हैं, that is density gradient centrifugation. And in density gradient centrifugation we create the gradient of sucrose from low to high concentration. Okay, or then we add our supernatant which we have acquired from our first process onto that sucrose gradient. Then we process that to for the centrifugation. After centrifugation, we observe that onto that gradient the organelles which जो सुपरनेंटल में प्रेजेंट थे, ओके, लाइक एंजाइम्स और या फिर कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रेजेंट थे, दैट इज दैट molecules or we can say that organelles are being transported according to their density. Okay, and once they or whenever that organelles or whenever the contents present in the new present in the supernatant, when they find like itself density, they will definitely stop there. Okay, and then we have to purify that further process depending on the, or we have to further purify that organelles or that solution. So what we do, we processed for the different separation techniques or different purification techniques like chromatography. Okay, so in this video we are going to discuss about the chromatography. But what is your point, why we are discussing this chromatography? Here your हमारा पॉइंट का नाम ही है कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एंजाइम प्यूरिफिकेशन. नाउ वी हैव टू प्यूरिफाई दैट enzyme. Okay, so purification definitely it's going to depend on the different criteria. Why? Now the question arises, why, what is the aim behind the purification of enzyme? Why we are purifying the enzyme? So the main aim is there definitely to get the high yield of that enzyme, first aim. Second aim is to obtain the purified enzyme, to obtain the keen enzyme. जो enzyme हमें चाहिए वही एंजाइम हम प्यूरिफाई करेंगे, और वी जस्ट वांट द एंजाइम इन द प्यूरिफाइड फॉर्म, सो वी प्यूरिफाई द एंजाइम. दैट इज सिंपल लॉजिक. ओके, नेक्स्ट, टू improve the catalytic activity, or we can say to obtain the maximum catalytic activity of that enzyme or of that protein. Okay, तो ये certain aims है for the purification or the reason behind the purification. अभी अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज, अगर हमें एंजाइम या फिर आपके प्रोटीन मॉलिक्यूलर, सी एंजाइम्स आर प्रोटीन, सो आई एम यूजिंग द वर्ड एंजाइम एंड ऑप्शनल फॉर दैट एंजाइम प्रोटीन. ओके, सो बेस्ड ऑन, अगर हम देखें बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज, सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिसके हिसाब से आप मतलब मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से टेक्निक यूज करके आप एंजाइम प्यूरिफाई कर सकते हैं. लाइक डायलिसिस इज देयर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज देयर, density gradient centrifugation is there, size exclusion chromatography is there. See, these are the different techniques from which you can purify the enzyme on the basis of the molecular size. Okay, next is on the solubility of the protein. तो solubility की protein मतलब solubility के हिसाब से भी different techniques है, like isoelectric precipitation is there, salting in salting out is there. Okay, so these are the techniques which comes under the solubility characteristic. Okay, next is based on the electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर कौन कौन से टेक्निक इन्वॉल्व है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज देयर, योर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज देयर. ओके, सो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स
from which you can purify the enzyme or obtain the desired enzyme. So this all the techniques, or we can say 2-3 techniques, we are going to see in detail. So now in this video we are going to discuss the purification of enzyme on the basis of the molecular size and molecular mass, or we can say molecular weight. Okay, so यहाँ पर पहले हमने देखा कि dialysis there. See, don't read the theory present on this slide, just listen what I am telling. You can read afterwards also this theoretical part. We will quickly come to our diagram because dialysis ये diagram के ही best पर है. ठीक है, तो जैसे कि देखा मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से डिफरेंट टेक्निक्स हैं. तो हम यहाँ पर जो है जो टेक्निक्स हम स्टडी करने वाले, इट्स डेफिनेटली डायलिसिस, योर जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी. ओके, ये 2 टेक्निक्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डायलिसिस. नाउ डायलिसिस ये जो मेथड है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्योर सेपरेशन. यहाँ पर आपको प्योर सेपरेशन मिलता नहीं है. ओके, यू डोंट गेट द कंप्लीट प्यूरिफाइड प्रोटीन. आपको फर्दर प्यूरिफाइड प्रोटीन डायलिसिस ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं. सॉरी, dialysis is not a chromatography technique. It is the purification technique, but here we don't get the complete purified enzyme. Getting my point? See, it is not a chromatography technique, and here we don't get complete purified enzyme, so it is not a very pure separation. Okay, it is a crude प्रोटीन मिक्सचर, आप इसको बोल सकते हैं क्रूड प्रोटीन मिक्सचर, जहां पर कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते, बट स्टिल इट इज बीइंग काउंट इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बिकॉज इट सेग्रीगेट. ये सेग्रीगेट करता है. ये क्या सेग्रीगेट करता है, जब आप टेक्निक देखेंगे विल कम टू नो. ओके, सो ये सेग्रीगेट करता है स्मॉल साइज प्रोटीन फ्रॉम द लार्ज साइज प्रोटीन. इतना उसका काम है. ओके, व्हाट इट डज, इट सेपरेट्स स्मॉल साइज प्रोटीन फ्रॉम द लार्ज साइज प्रोटीन. So if you want to separate particular type of protein according to the size, okay, then we would carry अगर आपको साइज के हिसाब से प्रोटीन सेपरेट करने हैं, तो देन वी कैरी द सेकेंड टेक्निक, और देन वी कैरी द सेकेंड मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, that is the, or we can say next method of chromatography, that is size exclusion chromatography. जैसे name indicates size, so on the basis of the size अगर आपको separate out करना है, तो next technique जो हम देखेंगे size exclusion chromatography या फिर gel filtration chromatography, that we are going to see. Now here the main aim is just a dialysis. So dialysis अगर it works on the 2 principles, that is diffusion method and second is the size exclusion chromatography. size exclusion chromatography हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे. आज सिर्फ हम पहली प्रिंसिपल डिफ्यूजन मेथड देखेंगे और फर्स्ट मेथड देखेंगे, दैट इज डायलिसिस. इफ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दैट्स इट. ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है ऑफ डिफ्यूजन. मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नाउ सी यहाँ पर क्या दिया गया है. जस्ट वी विल कम टू द डायग्राम. अगर ठीक है, डिफ्यूजन का एग्जांपल मैं आपको बता दूँ बिफोर गोइंग टू दिस एक्सपेरिमेंट. लेट मी टेल यू जस्ट अबाउट द डिफ्यूजन मेथड. So example of diffusion, if we will see, there is the bucket of water is there. Okay, bucket of water is there, and if you add some drop of ink into that water, what will happen? Ink will start to diffuse into that water, isn't it? और जो water का कलर था वो इंक के कलर के जैसे हो जाएगा. ओके, डार्क ब्लूइश और वी कैन से ब्लूइश कलर हो जाएगा. मीन्स व्हाट, हियर योर इंक इज कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड इनटू द water. So that is very good and very simple example of the diffusion method. तो जैसे इंक डिफ्यूज हो जाती है वाटर में, वैसे ही यहाँ पर डायलिसिस में डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन्वॉल्व है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हियर डायलिसिस बैग इज देयर. ओके, जो नैरो कॉलम में दिखाया है, दैट नैरो कॉलम इज योर डायलिसिस बैग. ओके, now this dialysis bag is there which is made in such a manner कि ऐसे वो बनाई जाती है कि small molecules are spell out, or we can say small molecules go out and large molecules remain intact inside.
ऐसे डायलिसिस बैग बनाई जाती है। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब क्या किया जाता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स गो आउट एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन इनसाइड दैट बैग। तो जो मटेरियल यूज किया जाता है टू मेक दिस डायलिसिस बैग, इट इज समवॉट लाइक प्लास्टिक टाइप, एक सेलोफेन मटेरियल, यू कैन से सेलोफेन बैग इज बीन यूज, जिसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि टू लेट गो आउट दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स को रिटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते जो रेड कलर के डॉट में दिखाया गया है, that red dot, it indicates your enzyme molecule. Okay, so in that dialysis bag your enzyme molecule is there, और वो डायलिसिस बैग डाली है एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन में। ओके, वन सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज बीन देयर एंड व्हाट हैपेंस नाउ, जैसे डिफ्यूजन है। नाउ आपने क्या किया है, सी यू हैव एड योर डायलिसिस बैग है, डायलिसिस बैग आपने रखी है एक यू कैन से एक वेसल में। ओके, एक वेसल या फिर एक जार में आपने वो डायलिसिस बैग रखी है, डायलिसिस बैग कंटेन्स योर यू कैन से योर सॉल्यूशन एंड दैट योर सॉल्यूशन कंटेन्स द एंजाइम। ओके, और आपने वो डायलिसिस बैग डाली है एक बॉटल या जार में विच कंटेन्स द योर सॉल्यूशन। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, नॉट इमीजिएटली, आफ्टर सम टाइम the concentration inside the bag and concentration outside the bag will be at equilibrium. Okay, will be at equilibrium, और वो जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता है तब तक उसको वैसे ही रखना। इट शुड बी रन ओवर टाइम टिल इट एक्वायर द इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है, उस जो टाइम आप जो दे रहे हैं इक्विलिब्रियम लाने के लिए, व्हाट हैपन इन दैट टाइम, वेरी सिंपल, जैसे इंक पूरी स्प्रेड हो जाती है उस पानी में, वैसे ही आपका जो डायलिसिस बैग में है जो सॉल्यूशन है, इट्स गोइंग टू सेपरेट आउट, इट्स गोइंग टू मिक्स इन दैट जार। ओके, इट्स गोइंग टू मिक्स इन दैट बॉटल, इट्स गोइंग टू कम आउटसाइड दैट डायलिसिस बैग। लेकिन डायलिसिस बैग की प्रॉपर्टी क्या है, इट रिटेन्स दी लार्ज साइज मॉलिक्यूल एंड इट, और स्मॉल साइज जो प्रोटीन है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो बाहर कहाँ जाते हैं, इनटू दैट, आउट ऑफ दैट डायलिसिस बैग, इनटू दैट बॉटल। वो देखिए पूरी तरीके से जो ब्लू कलर के डॉट में दिखाए गए, दे आर योर स्मॉल साइज प्रोटीन। ओके, क्योंकि वो बैग स्मॉल साइज प्रोटीन रिटेन नहीं कर सकी है, तो उस बैग में सिर्फ आपके जो लार्ज साइज प्रोटीन है वही इंटैक्ट है, और स्मॉल साइज प्रोटीन दे हैव केम आउट एंड दे हैव स्प्रेड इनसाइड दैट कंप्लीटली जार। ओके, लेकिन कुछ अमाउंट में स्मॉल साइज प्रोटीन भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मीन्स इनटू दैट डायलिसिस बैग दैट स्मॉल साइज प्रोटीन आर ऑल्सो बीन प्रेजेंट। ओके, तो आप वो लार्ज साइज प्रोटीन से स्मॉल साइज प्रोटीन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द टेक्निक नोन एज द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। सी डायलिसिस में सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डायलिसिस बैग यूज की जाती है। डायलिसिस बैग ऐसे कुछ प्लास्टिक टाइप मटेरियल से बनाई जाती है कि उसमें सिर्फ लार्ज प्रोटीन इंटैक्ट हो और स्मॉल प्रोटीन लेट आउट हो। ओके, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ सम ओवर टाइम के लिए रखा जाता है। उस टाइम में क्या होता है, आपके जो स्मॉल साइज प्रोटीन है वो पूरे उस डायलिसिस बैग के बाहर आते हैं एंड जो लार्ज साइज प्रोटीन है दे बी इनसाइड। ओके, और कुछ एकदम स्मॉल साइज के प्रोटीन अगर रह चुके उस डायलिसिस बैग में, तो इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट आउट। ओके, बिकॉज वी जस्ट वांट दी, अगर आपको लार्ज साइज प्रोटीन चाहिए तो डायलिसिस इज द टेक्निक, बट कुछ स्मॉल साइज के भी प्रोटीन वहाँ पर रहते हैं डायलिसिस बैग में इन वेरी रेयर अमाउंट। ओके, इन वेरी रेयर केसेस, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट दैट ऑल्सो स्मॉल साइज प्रोटीन। सो फॉर फर्दर टेक्निक वी यूज द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और इक्विलिब्रियम जो मैं बोल रही हूँ, इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है, जब डायलिसिस बैग के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द डायलिसिस बैग, then the equilibrium is been established. Okay, now what happens in the size exclusion chromatography? See, size exclusion chromatography, it is also known as the gel filtration chromatography. Okay, तो यहाँ पर जो important है
इसके बहुत सारे नाम हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी है. दिस इज द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट आउट द स्मॉल साइज पार्टिकल. ओके, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द साइज यहाँ पर हम सेपरेशन करते हैं. सो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. अब क्रोमेटोग्राफी डेफिनेटली इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन. इसमें दो चीज़ें काइंडली यूज़ की जाती है, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस. ओके, नाउ मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस क्या है मैं आपको बता दूं. यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, दैट इज SEC, SEC. स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, कॉलम, पंप एंड डिटेक्टर. नाउ इफ यू विल सी मोबाइल फेस, विल टॉक अबाउट द मोबाइल फेस. तो मोबाइल फेस देखिए, नाम में ही उसका मीनिंग है, मोबाइल मतलब मूवमेंट, इट कैन मूव, सो दैट इज द मोबाइल फेस. तो मोबाइल फेस कोई भी लिक्विड या फिर गैस की हो सकती है, दैट फ्लोज थ्रू द क्रोमेटोग्राफी सिस्टम, मूविंग द मटेरियल्स टू बी सेपरेटेड ओवर द स्टेशनरी फेज. मतलब जो पार्टिकल्स, जो सॉल्यूशन आपको सेपरेट करने हैं, वो मोबाइल फेज होती है. ये मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर रन की जाती है. अब स्टेशनरी फेज क्या है? स्टेशनरी मतलब वो कांस्टेंट रहने वाली, इट्स नॉट गोइंग टू मूव, दैट इज द स्टेशनरी. इट्स गोइंग टू बी अ स्टैग्नेंट, मतलब उसकी मूवमेंट नहीं होगी, ऑपोजिट ऑफ द मोबाइल फेज. जैसे मोबाइल में मूवमेंट हो रही है, स्टेशनरी में मूवमेंट नहीं होगी. तो मोबाइल फेज रन की जाती है स्टेशनरी फेज के ऊपर. ओके, देन कॉलम इज देयर. कॉलम इज योर क्रोमेटोग्राफिक कॉलम is been there, or you can say chamber is there, जहाँ पर आपकी स्टेशनरी फेज या स्टेशनरी फेज फिक्स की जाती है या फिर मोबाइल फेज रन की जाती है. सो दैट इज द कॉलम. Pump is there and detector is there. Detector means to detect how much amount of the sample is been purified. तो जो purified sample है वो एक सैम्पल होल्डर में या फिर एक ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है. तो और वही एट द सेम टाइम इट इज़ बीन डिटेक्टेड ऑन टू द डिटेक्टर बाय जनरेटिंग द पिक्स, और वी कैन से बाय जनरेटिंग द graphs. Okay, so that is all about the size exclusion chromatography, the components of the size exclusion chromatography. Okay, so in detail we are going to see the size exclusion chromatography in next video. Okay, this is just the explanation. तो इसके आगे हम देखेंगे उसके वी कैन से प्रिंसिपल, वर्किंग, व्हाट इज, कैसे स्टेशनरी फेज बनाई जाती है, कैसे मोबाइल फेज बनाई जाती है. दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.